Hello students, we are going to start the future tense, and this is the first part of the future tense, and the name of this future indefinite tense. As like by the name you know that future means bhavishya, and when there is a future tense in the last of the sentences there is ga ge gi. और जब भी हमारा किसी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आता है इट इंडिकेट दैट आर सेंटेंसेस इन द फ्यूचर. और गा गे के लिए हमें विल और शैल का प्रयोग करना होता है. एंड शैल इज यूज्ड विद आई और वी. आई और वी के साथ दे आर द फर्स्ट पर्सन, इनके साथ आपको लगाना है शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म. बाकी जितने भी सेकंड पर्सन होते हैं यू, और थर्ड पर्सन होते हैं ही शी इट दे एटसेट्रा, विद दी सेकंड और थर्ड पर्सन यू हैव टू यूज विल प्लस फर्स्ट फॉर्म. एज लाइक वी कैन चेक द हिंदी ऑफ द सेंटेंसेस. मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, वह कल दिल्ली जाएगा, उसके पिता शाम को अखबार पढ़ेंगे. When you are speaking these sentences, you are checking that in the last of the sentences there is ga ge gi, and when there is this sound then you have to use will or shall plus first form. You will check that which verb I have to use will or shall. Okay, as like example we will check just now. मैं कल बाजार जाऊंगा. In this sentence you will check that there is in the last ga. अब आपका गा आया है, इट मीन्स दिस इज फ्यूचर टेंस, सिंपल गा है, और इस गा के लिए वी हैव टू यूज विल अदरवाइज शैल. नाउ मैं, पहले हम मैं को ट्रांसलेट करेंगे. मैं मिस आई, देन वी विल गो इन द लास्ट. गा के लिए यू हैव टू यूज शैल बिकॉज योर सब्जेक्ट इज आई शैल, देन गा जाऊं. आई शैल गो, कहाँ जाऊंगा, टू मार्केट, व्हेन, टुमारो. एंड फॉर कल के लिए इसमें टुमारो का यूज होता है बिकॉज टुमारो इंडिकेट्स फ्यूचर. नाउ वी प्रोसीड फर्दर. वह शाम को मूवी देखने जाएगा. इन द लास्ट यू विल चेक दैट देयर इज गा, इट मीन्स दिस इज फ्यूचर एंड वी हैव टू यूज शैल और विल. नाउ वह मीन्स ही, देन इन द लास्ट वी विल गो दैट गा के लिए ही के साथ वी हैव टू यूज विल. ही विल जाएगा, ही विल गो, कहाँ जाएगा, टू वॉच मूवी, कैंप कब जाएगा, इन द इवनिंग. तो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दीज टू सेंटेंसेस. ही विल गो टू वॉच मूवी इन द इवनिंग. नाउ आई एम गिविंग यू एक्सरसाइज. This is exercise, and in this exercise I have given you 5 sentences, and what you have to do, you will do these sentences, you will translate these 5 sentences into English, and you will after translating you will send them in the comment boxes that ma'am this is the answer of this first, second, third, and I will check and I will respond to you. I will reply you that your sentence is right or not. According you have to apply all these rules. Your first sentence, मैं मुसीबत में तुम्हारी सहायता करूँगा. You have to translate it. This is the first. विद्यार्थी लॉकडाउन में ऑनलाइन एग्जाम देंगे. देन थर्ड इज सुमन अपनी मोम के साथ बाजार से सब्जी खरीदने जाएगी. हम समय पर आपका धन लौटा देंगे. एंड दिस इज द फिफ्थ वन, लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. यह निश्चित है कि इंडिया इस साल वर्ल्ड कप जीतेगा. These are the 5 sentences. You have to translate into English and you have to send them to me in the comment boxes so that I can check your exercises. This is how I have told you that how we can translate in Hindi into English. And even when we are doing spoken, then if we want to speak any sentence in the future, then we have to apply these rules to speak the sentences in the future. Now there is a verb. When you are giving any competitive exam and you are giving your unit test, weekly test, and this is the tense is the part of your syllabus that you have to fill up the correct form of the verb. अब आपको verb भरनी है. This is the translation. and now verb. आपकी मैम ने एक्सरसाइज दी है as like these two sentences. now there is some identifications word. एडवर्ब हैं जो आपको बता देती है कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है. एंड देन वी हैव टू यूज विल और शैल. टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक,
Otherwise anything can be there that indicate the next day, as like coming month, coming week, coming year, as like future indicates, as like now 2021 is going on. And if in the sentences there are the years that are in the future, like 2022, 2023, 2030, etc., it means they are the future year. And now by these adverbs you know that these indicate that our sentences in the future. Then you have to use will, shall plus first form, as like this is a sentence and you have to fill up the correct form of the verb. Now they dash here tomorrow and in the bracket there is reach. अब आपको है कि आपको इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ भरनी है. नाउ यू विल चेक दैट देर इज टुमारो. टुमारो वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है दिस इज फ्यूचर. जब टुमारो आया तो हम इसमें लगाएंगे दे के साथ विल प्लस रीच की फर्स्ट फॉर्म रीच. They will reach here tomorrow because we have to fill up the correct form of the verb. Now we next sentence, he dash his new house in 2023. इसमें भी हमको करेक्ट फॉर्म भरनी है. नाउ यू विल चेक दैट दिस इंडिकेट द फ्यूचर. फ्यूचर ईयर को इंडिकेट करता है और आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है. तो व्हाट यू विल बी ही, फ्यूचर को विल शैल. ही के साथ आपको यूज करना है विल एंड इन द ब्रैकेट देयर इज बिल्ड एंड वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इट बिल्ड. ही विल बिल्ड हिज न्यू हाउस in 2023. These are the two sentences that we are doing. Now another, these are the conditional sentences. conditional क्या होता है? शर्त. ये आपकी हेल्प करेंगे टू अ लार्ज एक्सटेंट दैट हाउ वी कैन फिल अप द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दीज सेंटेंसेस. यू विल चेक. कंडीशनल सेंटेंसेस 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. एंड आपको दोनों साइड की वर्ब लर्न करनी होती है. इफ़ में यू विल चेक, इफ़ स्टार्टिंग में है देयर इज़ वन सेंटेंस एंड देयर इज़ सेकंड. सेम सेकंड पैटर्न में हेयर फर्स्ट, हेयर विल बी सेकंड सेंटेंस. सेम इन द थर्ड, इफ विल बी इन द स्टार्टिंग, हेयर इज़ द फर्स्ट सेंटेंस एंड हेयर इज़ द सेकंड सेंटेंस. अगर इफ़ के स्टार्टिंग में सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म SCS आपको लगाना है. दूसरी तरफ आपको सेंटेंस में लगाना है विल फर्स्ट फॉर्म. अगर आपकी फर्स्ट सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है तो आपको उधर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करना है. इफ़ अगर आपकी हैड थर्ड फॉर्म है उधर आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हैव टू अप्लाई. नाउ इट कैन बी देयर दैट इफ़ इट विल बी देयर then you have to fill up this one. If they have given this one then you will check that you have to fill up this one. Same, this one they have given to fill up the correct form, then you will fill up this one. एंड जो इसमें हिंदी आती है वो आएगी, ठीक है, गागेगी गागेगी. दोनों सेंटेंस में आपकी गागेगी की सेंस आएगी, लेकिन दोनों सेंटेंस में आप विल शैल नहीं भर सकते. दिस इज़ द रूल. इन द फर्स्ट सेंटेंस यू विल फिल अप फर्स्ट फॉर्म SCS एंड इन द सेकंड विल फर्स्ट फॉर्म. इसमें आती है वी कैन सी these rules, we can understand these rules by these 3 sentences. If he works hard he dash pass. अब हमको क्या करनी है, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है. नाउ यू विल चेक इफ इज देयर. इफ इसमें यहाँ पर है एंड यू विल चेक दिस सेंटेंस, इसमें है SES. नाउ इट मीन्स इट इज मैचिंग फ्रॉम दिस रूल. इसमें फर्स्ट फॉर्म SES होगा तो अंडरस्टूड है वी हैव टू फिल अप विल प्लस फर्स्ट फॉर्म इन दिस सेंटेंस. तो यहाँ पर SES है. दिस वन यू विल चेक फ्रॉम द फर्स्ट वन, देन वी विल फिल अप हेयर विल प्लस पास फर्स्ट फॉर्म. ही विल पास. यदि वह मेहनत करेगा तो वह पास हो जाएगा. दिस रूल इज मैचिंग विद दिस रूल. नाउ नेक्स्ट वन, इफ़ ही डैश हार्ड ही वुड पास. नाउ यू विल चेक इफ इज हेयर. इफ़ में से आप दूसरा सेंटेंस चेक करते हो जो उन्होंने दिया है. इसमें है वुड फर्स्ट फॉर्म, वुड फर्स्ट फॉर्म है. यू विल चेक दिस वन, ये से मैच हो रहा है. तो अगर वुड फर्स्ट फॉर्म है तो आपको दूसरे सेंटेंस में जो बचा है उस पर सेकेंड फॉर्म लगानी है. तो इसमें वुड फर्स्ट फॉर्म है तो वर्क की आपको सेकेंड फॉर्म अप्लाई करनी है वर्क. अब नाउ व्हाट इज़ द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस. यदि उसने मेहनत की होती तो वह पास हो गया होता. नाउ
यदि वह मेहनत करता तो वह पास हो जाता। नाउ द लास्ट वन, इफ ही डैश वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अगर आपका ये दिया है हैड वर्कड, हैड थर्ड फॉर्म, तो हैड थर्ड फॉर्म है तो अंडरस्टूड है वी हैव टू यूज वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड दिस इज मैचिंग दिस वन। इधर हैड थर्ड फॉर्म है तो वी विल फिल अप वुड हैव पास्ड। इसमें यदि उसने मेहनत की होती वह पास हो गया होता, इसका है यदि वह मेहनत करता वह पास हो जाता, बिकॉज दिस इज कंडीशन, दिस इज नॉट रियलिटी, दे आर अप्लाइंग द कंडीशन। ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। दिस इज फ्यूचर, यदि वह मेहनत करेगा तो वह पास हो जाएगा। These rules I have told you. I think it will help you a lot to fill up the correct form of the verb that will be in the future. One is left, then I will add it in the next video. And please, I'm requesting you, please subscribe my channel so that my new video can be reached to you very soon when I upload any video, and it will also help to translate into English and to fill up the correct form of the verb. Thank you, thanks a lot.